how are you? Welcome back to my channel. So मुझे कुछ मैसेजेस कुछ रिक्वेस्ट आए हैं saying कि मैं enough स्किन केयर वीडियोज़ नहीं बनाती and people would like to see more of that, and I realized that yeah, it is true as compared to makeup videos स्किन केयर मैं थोड़ा कम बनाती हूँ and it is not good because जितना ज़्यादा आप मेकअप करते हो उतना ज़्यादा ही आपको स्किन की केयर करने की भी ज़रूरत पड़ती है. So I thought कि अब से मैं कुछ ज़्यादा स्किन केयर वीडियोस बनाऊंगी. सो वेलकम टू अनदर स्किन केयर वीडियो. Today I'll be telling you something very special. It's gonna be a special video because it's gonna be different than usual and it's gonna be really important. आपने देखा होगा कि हम गूगल पे, यूट्यूब पे, इन जनरल सोशल मीडिया पे क्या सर्च करते हैं कि स्किन केयर कैसे करना है. अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, पिंपल्स है, एक्ने है, कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कैसे करना है. वी लुक फॉर what we should do but we never look for what we should not do. So बहुत सारे स्किन केयर मिस्टेक्स होते हैं जो हम सब करते हैं जिनकी हमें अवेयरनेस भी नहीं है. मैं खुद बहुत ऐसी मिस्टेक्स करती थी which is really not good for my skin and I did not know about it till I saw a video or read about it. So I want to share all these important points with you ताकि आप ये mistakes ना करो स्किन केयर में. And yeah, that is going to be our motto for today's video. So without any further ado, let's begin. So the very first mistake is cotton pads. Now cotton pads are such an essential item in our makeup routines. हम इसको क्लेंजर के लिए, टोनर लगाने के लिए, मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं एंड वॉट नॉट. बट आई डू नॉट लाइक कॉटन पैड्स एंड आई डू नॉट यूज़ दैम बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर द स्किन. हैव यू सीन इनका सरफेस कितना रफ है? हैव यू सीन दीज फाइबर्स जो इसमें से निकलते रहते हैं? आई डोंट नो, कैन यू सी? या दीज फाइबर्स जो निकलते रहते हैं. सो दिस इज़ नॉट वेरी गुड फॉर योर स्किन. इफ़ यू हैव ड्राई स्किन देन दीज फाइबर्स विल लिटरली गेट स्टक इन टू योर स्किन. मतलब ये लिटरली अटक जाएंगे. मतलब अगर आप किसी सरफेस को किसी रफ सरफेस से ऐसे रब करोगे, यू कैन सी उसमें वो फंस जाता है. सो दीज फाइबर्स विल एक्चुअली गेट stuck in your skin and if you have oily skin then the fibers will चिपक जाएंगे आपकी स्किन से because of the oiliness. and if you have sensitive skin with acne or pimples then उस sensitive area पे इतना rough कोई चीज़ लगाना is not at all good. So I really don't like these cotton pads and I do not use them. I suggest कि आप चाहे कुछ भी लगा रहे हो. मैं तो मेकअप रिमूवर भी हाथ में लेके लगाती हूँ because हाथ like nothing better than that, no? So it's best if you apply everything using your hand, but still if you think that cotton pads are very important in your routine and you cannot do without them then go ahead, it's okay. Just make sure कि आप जो भी प्रोडक्ट इसके ऊपर डाल रहे हो अच्छे से कॉटन पैड उसमें ड्रेंच्ड हो. अगर आप टोनर यूज़ कर रहे हो तो कॉटन पैड अच्छे से भीगा हो टोनर से so that it is not rough. Our next point is about how you wash or clean your face. कभी आपने consciously सोचा है कि मैं अपना मुंह कैसे धोता हूँ या धोती हूँ? अगर आप सोचोगे ना you will notice कि एक पैटर्न है, एक फिक्स पैटर्न है जिसमें आप हमेशा अपना फेस धोते हो. You are either just doing this or this ऐसे, and you have to realize that you are leaving some areas of your face कभी ना कभी. maybe you are not washing here, you are not cleaning here, इधर maybe इधर somewhere you are just leaving some part of your face and you're not giving that part equal attention as compared to other parts. So please don't do that. अपने फेस के एक एक कोने को, एक एक हिस्से को equally treat करो because in the long term it will have effects. You will see कि maybe थोड़ा सा color difference आ रहा है, maybe some parts of the area are having some or the other problem, चाहे minor ही हो but it will have some problem. So next time when you wash your face just make sure, सोचना धोते हुए कि क्या मैंने हर एक एक कोने पे, एक एक हिस्से पे इक्वली अच्छे से क्लीन करा है कि नहीं. एंड डोंट लीव एनी पार्ट एनी टाइम. like make that your habit.
Our third point is about bed hygiene. क्या आप सेम कपड़े हफ्तों तक पहनते हो? नहीं ना. So why do you not change your bed sheets, bed pillow covers, blankets and all of that on a regular basis? It has so many germs, it has a lot of dirt, and जब हम सोते हैं like we sleep for like 6 to 8 hours at least, so हम अपने face को direct contact में ला रहे हैं उस surface से. We are telling all the germs and dirt कि आ जाओ हमारे face पे. So that is no good for your skin. And वैसे भी अभी quarantine चल रहा है, we are spending more time in our homes, in our rooms, and obviously we are spending more time in our beds. So chances और बढ़ जाते हैं and need भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम इन सब चीज़ों को regularly change करें. And if you're अगर आप दुनिया भर का स्किन केयर रूटीन कर रहे हो बट आप ये नहीं कर रहे, then there is no point in doing that skincare routine. If you don't want to follow any skincare routines, the least you can do is change your bed sheets and everything on a regular basis. That will make a huge difference. So if you haven't done that, please do that after watching this video. Our next point is think about all the items, all the stuff that come into direct contact with your face. कुछ भी जो आप अपने face पे directly लगाते हो या आपके face से contact में आते हैं, it could be your phone, it could be your hands, and आज के time पे it could be the face mask or anything that you put or apply, whatever. And try to find some alternatives for it. Maybe phone के लिए you can use earphones, earpods, Bluetooth devices, whatever. And if you don't have those, then make sure to clean your phone on a regular basis. उसको sanitize करो या किसी भी और मोड से spray वगैरह से just clean it, because it has so many germs, so many bacteria, dirt on it, and मेरा phone इतने लोग छूते हैं. So just make sure everything's clean. For hands, wash them regularly on a regular basis, जो आजकल की नीड है ही, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्किन. सो उस पर्पज़ के लिए, उस सेंस में, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली. एंड अगर आपको लेजीनेस आ रही है, लाइक वॉश नहीं करना, सैनिटाइज नहीं करना, देन ट्राई टू अवॉइड सिटिंग लाइक दिस ऑल द टाइम और टचिंग योर फेस इन जनरल, जो मैं बहुत करती हूँ. सो या, एंड फेस मास्क के लिए वॉश देम रेगुलरली और यूज़ डिस्पोजेबल मास्क, बिकॉज again, direct contact. So just think about all the stuff that touches your face or comes close to your face and make sure to find alternatives or wash them. Point number 5, please do not pop your pimples. I know it's a guilty pleasure, बहुत लोगों का, we all love following our pimples. But please do not do that. It is never good for skin. It can lead to so many problems. Like आप उस एरिया को और सेंसिटिव कर सकते हो और प्रोन कर सकते हो एक्ने या पिम्पल्स के लिए. एंड इट कैन लीड टू एक्ने स्कार्स, एक्ने मार्क्स, वहाँ पे डिस्कलरेशन हो सकता है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, none of which is good. So please avoid doing that. And I see a lot of people apply layers and layers and layers of makeup to hide it. Foundation, concealer तो पूरा थोप देते हैं. So I understand, I truly understand, because I've been through the same things and I've done all the same things. But let's be clear, it is not good. Makeup has a lot of chemicals and in general makeup is not very good for skin. तो अगर आप उसको एक already sensitive area पे लगा रहे हो, just imagine what you are doing. आप apply करो makeup, I'm not saying कि मत करो, but apply a very thin layer just to maybe hide the redness, ताकि दूर से like अलग से दिखे ना, color ना दिखे, maybe to just blur it out. So apply for that purpose. But उसका जो वो ऐसे pop कर रहा होता है, like थोड़ा सा बम्प बना होता है, उस बम्प को छुपाने के लिए लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स अप्लाई मत करो. बिकॉज जस्ट रिमेंबर दैट आप सिर्फ पिंपल पे अप्लाई नहीं कर रहे, पिंपल के आसपास, पिंपल के नीचे, it's your skin. So you are affecting other areas also because of that one pimple. So please avoid doing that. कम मेकअप यूज़ करो रेडनेस हटाने के लिए, and it's okay, it will go away. Just have patience. Our next point is about washing your face. आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि you should wash your face regularly, which is very true, but no one told you that you should not wash your face too regularly. Like for example, अभी तो हम घर पे हैं, but जैसे हम पहले बाहर जाते थे या थोड़ा भी बाहर जाते हैं,
On a general basis, it's okay, it's good to wash your face 2 to 3 times a day, but more than that is really bad for your face. Because जब आप उसको वॉश करो, you're scrubbing your face. Also remember not to, बहुत ज़ोर मत लगाना, कुश्ती मत लड़ना अपने फेस के साथ. Be soft, be gentle while washing or scrubbing your face. So back to the point, when you're washing your face or scrubbing your face, अगर आप उसको excess में कर रहे हो, when it is not even needed, तो डर्ट या जर्म्स की तो कोई लेयर है नहीं जो हटेगी. सो इट्स डायरेक्टली अफेक्टिंग आवर स्किन. तो स्किन के ऊपर जो नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स हमारा फेस, हमारी स्किन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उसको भी रिमूव कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड. नेक्स्ट पॉइंट इज सो इम्पॉर्टेंट. अगर आप मेकअप लगाते हो एंड makeup tools like brushes, beauty blenders, whatever आप use करते हो, so please clean them, wash them and sanitize them on a regular basis. उन पे इतना बैक्टीरिया होता है, you have no idea, and we put it all over our face. like हम eyelids पे लगाते हैं, which is so sensitive. फेस वॉश करते हुए हम एरियाज भूल जाते हैं वॉश करना, बट मेकअप करते हुए हम एक एरिया नहीं छोड़ते, हर कोने पे हम मेकअप लगाते हैं. सो जस्ट इमेजिन डायरेक्टली आप अपने फेस पे कितना जर्म्स, कितना बैक्टीरिया इन्वाइट कर रहे हो. एंड प्लीज़ अवॉइड शेयरिंग योर मेकअप एज वेल एज योर मेकअप टूल्स, चाहे वो कोई भी हो. लाइक फ्रेंड्स एंड दूर के रिश्तेदारों से तो दूर ही रखो, ठीक है. बट घर पे लेट्स बी रियलिस्टिक, अगर आप घर पे रह रहे हो, लाइक इफ़ योर फैमिली मेम्बर वांट्स टू यूज़ इट, देन ऑब्वियसली यू विल बी शेयरिंग इट. सो जस्ट रिमेंबर कि जब भी वो आपको यूज़ करके वापस दे, मेक श्योर टू सैनिटाइज देम एंड क्लीन देम, बिकॉज सबका फेस डिफरेंट होता है, सबके फेस पे डिफरेंट काइंड के जर्म्स एंड बैक्टीरिया होते हैं, एंड यू नेवर नो हाउ द अदर पर्सन हैज़ ट्रीटेड योर मेकअप एंड योर मेकअप प्रोडक्ट्स. सो मेक श्योर, बी सेफ in this thing. Clean, sanitize, wash your makeup and your makeup products regularly. Point number 8 and probably the most important point आज की वीडियो में is lemon. Oh my god, किसी ने मेरे को क्यों नहीं बताया था सालों पहले लेमन के बारे में. I was using it on a regular basis. I was adding it into my skin packs and face packs and face masks, and nobody told me that lemon is so harmful for the skin. Lemon basically क्या होता है, it's acidic, right? आप लेमन को एज एसिड देखो. क्या आप कभी अपने फेस पे एसिड लगाओगे? नहीं ना. मोस्ट ऑफ यू जिन्होंने लेमन अपने फेस पे लगाया होगा मस्ट हैव एक्सपीरियंस कि लगाने के बाद इरिटेशन हुई होगी, रेडनेस, ड्राइनेस, फ्लेकीनेस, एंड जलता होएगा आपका फेस, बर्न होता होएगा, एंड उसके बाद बहुत सेंसिटिव फील करता होएगा. सो दैट इज़ लेमन फॉर यू. इट माइट हैव वर्क जस्ट ऑन अ हैंडफुल ऑफ पीपल, बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल इट डजंट वर्क, एंड इट रियली affects and harms the skin. So please, अगर आप अपने रूटीन में लेमन इंक्लूड करते हो तो आप उसको अभी निकाल दो, बिकॉज इट इज़ डूइंग नो गुड ऑन योर फेस. Our next point is sunscreen. चाहे आप बाहर निकल रहे हो या नहीं निकल रहे, सन की रेज, उसकी रेडिएशन आप तक पहुंच रही है. आपने नोटिस करा होगा जब आप बाहर निकलते होगे, लाइक विद मोस्ट ऑफ यू, धूप में आपकी स्किन रेड हो जाती है, इरिटेट होने लगती है, सन बर्न्स हो जाता है, टैनिंग हो जाती है, एंड ड्राइनेस, इचनेस होती है, सेंसिटिव हो जाती है बेसिकली. ओके, सो अगर आप सोच लो कि मैं तो कमरे में बैठा हूँ या बैठी हूँ, बट अगर आपके कमरे में कहीं से धूप आ रही है, सो द रेज आर रीचिंग यू. सो मेक श्योर अगर आप घर पे भी हो कि आप सनस्क्रीन लगा रहे हो. डोंट स्किप दैट, डोंट फॉरगेट दैट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट. आप अपना मॉइस्चराइजर लगा के सनस्क्रीन लगा सकते हो, सिर्फ सनस्क्रीन लगा सकते हो, एंड मेकअप से पहले भी एज अ बेस आप सनस्क्रीन लगा सकते हो, बट डोंट मिस आउट ऑन इट. And we come to our last point, which I hope आप में से काफ़ी लोग कर रहे होंगे, which is to apply and follow my DIY skin packs and masks and routines that I make. नहीं, मैं किसी भी वे में अपनी वीडियोस का प्रमोशन नहीं कर रही, ना मेरे DIY पैक्स का प्रमोशन कर रही हूँ. आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, गूगल, यूट्यूब, नेट पे आपको जो भी DIY ऑर्गेनिक मास्क मिले आप वो कोई भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ मैं अपना नहीं कह रही. बट माई मेन कंसर्न इज़, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि बिफोर यू अप्लाई एनी हार्श
केमिकल्स, चाहे वो मेडिसिन हो, क्रीम्स हो, कोई फॉर्मूलाज हो, या फिर कोई भी जो हमें ऑनलाइन ब्रांडेड चीज़ें मिलती है फेस पे लगाने के लिए, वो अप्लाई करने से पहले अगर आप घर की ऑर्गेनिक चीज़ें अप्लाई करो, बिकॉज दे आर सो सेफ एंड दे आर सो गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, तो अगर आप वो अप्लाई करो सो दैट इज़ मच बेटर. हो सकता है कि आपका सिर्फ वो अप्लाई करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. सो आई एम नॉट सेइंग कि डोंट सीक मेडिकेशन एंड डोंट अप्लाई मेडिसिन एंड ऑल दैट क्रीम्स. आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि वो स्टेप लेने से पहले यू कैन ट्राई द इनिशियल स्टेप विच इज़ घरेलू तरीके. यू कैन ट्राई दैट, मे बी आपके लिए वर्क कर सकता है. बट जिनका सिवियर केस है, जिनके लिए वो भी वर्क नहीं करे, देन यू कैन सीक मेडिकेशन. So yes, that was the last point. So with that said, we finally come to an end for today's video. I really hope कि आपको आज की वीडियो हेल्प करी हो, बेनिफिट करी हो, आपने कुछ सीखा हो, कोई आपको इंसाइट मिली हो. प्लीज़ इन पॉइंट्स को दिमाग में रखना, इनको याद रखना एंड चेंज एनी ऑफ दीज हैबिट्स इफ़ यू हैव. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको हेल्प करी हो, अगर आपको अच्छी लगी हो. इसको शेयर ज़रूर करना बिकॉज वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट आवर स्किन एंड द मिस्टेक्स वी मेक. एंड कमेंट कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आप ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हो. और इफ़ यू हैव एनी अदर सजेशन फॉर मी, यू कैन कमेंट, DM, email, whatever feels comfortable to you. And don't forget to subscribe to my channel if you haven't already. And with that said, that will be all for today. So I'll see you all in my next video. Bye.